امان نے مراد کو کال کر کے اپنے گھر بلایا تھا کہ وہ دل کے ڈاکٹر کو لے کر آ جائے۔ آج صبح سے ہی وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ آج وہ دل کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا، جس کے جواب میں وہ صرف ہاں ہوں کر رہی تھی۔ امان کی باتوں سے اسے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوئے کوئی 1-2 دن نہیں بلکہ پورے 2 مہینے گزر چکے ہیں، جس پر وہ کافی حیران بھی ہوئی۔ وہ ٹھیک سے بول نہیں پا رہی تھی۔ بولتے ہوئے اسے اپنی گردن میں پین بھی محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے وہ خاموشی خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کے دماغ میں پتہ نہیں اس وقت کیا چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی زنیرہ اور اشمل بھی اس کے روم میں آئی تھی، جو آج امان کو ناشتے پر موجود نہ دیکھ کر پریشانی سے ادھر چلی آئی تھی۔ دل کو ہوش میں آئے دیکھ کر وہ بھی خوش ہوئی۔ اشمل تو اس کے سرانے بیٹھ کر اس کی گالیں چومے جا رہی تھی۔ زنیرہ نے 1-2 بار پکارا لیکن دل اس کے سامنے بولی ہی نہیں۔ وہ اپنے بے ربط الفاظ اس کے سامنے بولتے ہوئے شرم محسوس کر رہی تھی۔ امان ان ماں بیٹی کے ساتھ کافی دیر اپنی خوشی شیئر کرتا رہا اور دل کے دائیں جانب بیٹھا ہر بات کے ساتھ ایک پیار بھری نظر سے دل کو دیکھتا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا۔ زنیرہ کو امان کے ساتھ ہنستے ہوئے باتیں کرتے دیکھ اس کا دل بھاری ہونے لگا اور آنکھیں جلنے لگی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ جب 2 مہینے سے وہ بے ہوش تھی تو امان اور زنیرہ ایسے ہی خوش ہوئے ہوں گے۔ آج ان دونوں کو دیکھ کر اسے عجیب وحشت ہو رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہوئے جب آنکھوں میں آنسو امٹنے لگے تو دل نے اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ تب امان نے انہیں یہ کہہ کر بھیج دیا کہ شاید دل ٹھیک محسوس نہیں کر رہی تو وہ تھوڑی دیر آرام کرے۔ معلوم نہیں کیوں لیکن امان کی بات سن کر اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس کو زنیرہ پر فوقیت دے رہا تھا، یہی بات اسے سکون بخش رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مراد کے ساتھ ڈاکٹر بھی کمرے میں داخل ہوا تو امان اس کے پاس سے اٹھ کر ڈاکٹر سے مصافحہ کرنے لگا۔ ڈاکٹر دل کا چیک اپ کرنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اس نے امان کو بتایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ دل واپس ٹھیک ہو جائے گی، تھوڑا ٹائم لگے گا۔ ڈیلی ایکسرسائز کروانے کی وجہ سے وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ جیسے جیسے وہ کوشش کرے گی اپنے باڈی پارٹس کو حرکت دینے کی، ویسے ہی اس کی کنڈیشن میں بہتری آئے گی اور وہ جلد ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے امان کو دل کے لیے ایک فزیو تھراپسٹ رکھنے کا بھی مشورہ دیا، جس کا بندوبست کرنے کا کام امان نے آج ہی مراد کو سونپ دیا تھا۔ وہ خود بھی دل کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھ کی مالش کر رہا تھا۔ وہ اداس بے رونق آنکھیں لیے چھت کو ہی دیکھنے میں محو تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کی طبیعت میں اتنا چڑچڑاپن کیوں پیدا ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے دل میں اٹھنے والے شک کو امان پر ظاہر کرے، اس پر غصہ کر کے خود کو ریلیکس کرے۔ آخر کیوں وہ زنیرہ سے اتنا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا؟ کیا اسے دل کے کوما میں جانے کا دکھ نہیں تھا؟ وہ کوما میں کیا گئی؟ امان نے اپنے لیے اور ایکٹیویٹیز تلاش کر لی۔ رہ رہ کر اسے امان کا زنیرہ کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرنے والا منظر یاد آ رہا تھا۔ تلخ سوچوں کے باعث اس کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی۔ وہ اپنی انگلیوں اور ہاتھ کی پشت پر امان کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر رہی تھی، لیکن دماغ میں منفی سوچوں کے انبار لگے تھے۔ وہ کیسے اس کی خوشی پر دھیان دیتی یا اس کے خیال رکھنے پر، جو آج صبح سے 1 سیکنڈ بھی اسے چھوڑ کر باہر نہیں گیا تھا۔ میری چندہ پریشان نہ ہو، مجھے یقین ہے تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں ہوں نا اپنی دل کے پاس۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ایسے اداس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اپنی ساری اداسی مجھے دے دو۔ تمہارا مان تمہارے چہرے پر صرف خوشی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے اداس چہرے پر نظریں جمائے امان دھیمے لہجے میں بولا تو وہ چھت سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بالکل بے تاثر تھیں۔ کاش ایسا ہوتا مان، آپ میرے پاس ہوتے، سرگوشی نما آواز میں اس نے دکھ سے کہا۔ تو امان اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ آخر وہ ایسا کیوں بول رہی تھی؟ وہ تو ایک ایک پل اس کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب ہوش میں آئے اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے اس نے کیا کیا نہیں کیا۔ کتنی بار اس کے بے حس وجود کو دیکھ کر وہ روتا رہا تھا۔ مان کی پیاری جان، کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو تم؟ کیا ایسا ہوتا؟ میں ہوں نا تمہارے پاس، یہ دیکھو کیا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے امان نے کہا۔ وہ آنکھوں میں بے پناہ پیار لیے اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ تو پاس ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ پاس تو بہت سارے لوگ ہیں۔ میں سونا چاہتی ہوں مان۔ صبح کی نسبت ابھی وہ کافی الفاظ ٹھیک سے ادا کر رہی تھی۔ اس نے مان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ ہلایا بھی نہیں گیا تو سونے کا بہانہ کرنے لگی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں دل، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل۔ میں نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ باخدا میرے دل میں صرف میری دل ہے اور میری روح میں سما چکی ہو تم۔ دل پاگل، کیا کیا سوچ رہی ہو تم؟
तुम्हें अगर मालूम हो ना कि तुम मेरे लिए क्या हो और तुम मेरे लिए कितनी अहमियत रखती हो, तो कभी तुम ऐसी बातें ना बोलो। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, पता नहीं कैसे, कब मेरे दिल में छुपते छुपाते आकर घुस गई हो तुम, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी दिल तो है भी छोटी सी ना, नज़र ही नहीं आती। आखिर में उसने बात को शोक रंग देते माहौल पर छाई अफसुर्दगी कम करने की कोशिश की। अब सो जाऊं। उसकी इतनी प्यारी बातों पर अजीब सा रिएक्ट करके दिल ने कहा तो अमान खामोशी से उसके चेहरे को देखने लगा। सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ। दिल को अपनी जानिब सवालिया नज़रों से देखते पाकर अमान ने उसे सोने का कह दिया। हालांकि उसका कोई दिल नहीं चाह रहा था कि वो सोए। वो अभी उसके साथ बहुत बातें करना चाहता था। छोटी हूँ तो तभी अमान ने बड़ी की तलाश शुरू कर दी। मैं नज़र ही नहीं आई और बड़ी नज़र आ गई। आंखें बंद किए वो उसके मजाक में कही बात को नेगेटिव अंदाज में सोचने लगी तो अमान पास बैठे उसके बालों में मसाज करने लगा ताकि वो पुरसकून होकर सो सके। अगले 10 मिनट में वो आंखें मूंदे वाकई में सो गई तो अमान उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगा कि वो ऐसा क्यों सोच रही थी। जिस वक्त से उसकी आंख खुली, अमान को उसका चेहरा और आंखें बिल्कुल खाली, उदास और वीरान नजर आई। एक सेकंड के लिए भी उसके होंठों पर मुस्कुराहट नहीं आई, लेकिन अभी उसकी दिल को होश आ गया था। वो इसी बात पर बहुत खुश था। सेल पर आने वाली कॉल ने उसकी सोचों के तसलसल को तोड़ा तो अमान ने जल्दी से सेल को म्यूट किया। अभी दिल की आंख लगी थी। वो नहीं चाहता था कि दिल की नींद में खलल पैदा हो और वो जाग जाए, इसलिए स्क्रीन पर जगमगाते नाम को नागवारी से देखते वो बालकनी में चला गया। क्या मसला है? जब तुम्हें मिलने का कहा था तो उस वक्त तुम्हें मौत पड़ी हुई थी। यूनिवर्सिटी, टेस्ट, टर्म और पता नहीं क्या क्या याद आ रहा था। अभी क्यों कॉल की? इस वक्त नहीं याद आ रहे टर्म तुम्हें क्या? दिल के पास से उठकर वो बालकनी में आते ही कॉल पिक कर कर भड़कने लगा। सॉरी माई एंग्री यंग मैन, इतना नाराज़ हो गए तुम सिर्फ ना मिलने वाली बात पर। मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारी नाराज़गी दूर करने के लिए। तुम्हारे घर के कुछ ही फासले पर हूँ। पहले तुम्हारे ऑफिस गई थी, वहाँ से मालूम हुआ कि तुम और तुम्हारा दोस्त कोई भी नहीं गया ऑफिस, तो मुझे फ़िक्र होने लगी, इसलिए घर पर आ रही हूँ। बस 1 मिनट में पहुँचने लगी हूँ। कॉल पिक होते ही दूसरी जानिब मौजूद मीना लगातार एक ही सांस में बोले जा रही थी, जबकि उसके घर आने का सुनकर अमान के चेहरे पर परेशानी की शिकनें नमूदार हुई। वो पहले भी 1-2 बार उसके घर आई थी, लेकिन तब कोई मसला नहीं था क्योंकि तब दिल हॉस्पिटल में थी, और इस बार वो उसे घर लेकर आ चुका था और दिल को होश भी आ चुका था। अगर मीना घर आती है तो उसे दिल के बारे में पता चल सकता है। वो उससे डरता नहीं था, बस वो चाहता था कि अभी उसका मिशन पूरा होने से पहले मीना के सामने दिल की सच्चाई ना आए, वरना उसका सारा काम बिगड़ सकता था। गेट पर आ जाओ हैंडसम, मैं पहुंच गई हूँ। एयरपीस से आती मीना की आवाज़ सुनकर उसने नीचे देखा तो गेट से मीना की गाड़ी अंदर आ रही थी। वो कुछ सोचते हुए रूम में वापस आया और दिल पर कंफर्टर ठीक करते उसकी पेशानी को लबों से छूकर रूम से बाहर निकल गया। सीढ़ियाँ उतरते वो जैसे ही हॉल में आया तो उसे मीना मुस्कुराती हुई अंदर आती नजर आई। आते ही उसके आसपास का होश किए बगैर बेतकल्लुफी से वो उसके गले लग गई। हॉल में सोफे पर बैठी जुनैरा ये मंजर बहुत नागवारी से देख रही थी। वो 1-2 बार पहले भी मीना को देख चुकी थी। एक बार अमान ने उसे बताया था कि ये दिल की कज़न है, लेकिन जुनैरा को वो किसी भी एंगल से पसंद नहीं आई। भला अपने ही बहनोई से ऐसे चिपकता है कोई? इसे ज़ेब देता था ये सब कुछ करना? वो मीना के बारे में ये सोचती थी। जूनी, हम बाहर लॉन में बैठते हैं, रिफ्रेशमेंट का सामान भिजवा दो बाहर, और ईशी आप अभी इधर ही रहना, मैं थोड़ी देर में आपके पास खुद आ जाऊंगा। मुस्कुराने की सही करते उसने जुनैरा के साथ ईशमल को भी कहा, जो अपनी ड्राइंग की बुक छोड़कर उसके साथ बाहर जाने को तैयार हो रही थी। जुनैरा हैरत से एक नज़र उन दोनों की पोस्ट को देखते ईशमल को दोबारा बुक खोल कर देने लगी। तुम्हारे रूम में चलते हैं ना अमान? बाहर से तो मैं अभी आई हूँ। वैसे तुम्हारा रूम मैंने सिर्फ एक बार ही देखा था, बहुत अच्छा लगा था मुझे, बिल्कुल परफेक्ट। उसके साथ बाहर की जानिब कदम उठाते हुए मीना ने कहा तो अमान की आंखों में नापसंदीदगी के तासुरात उभरे। नहीं, मैं अंदर ही था सुबह से, अभी बाहर बैठना चाहता हूँ, संजीदा लहजे में कहते हुए वो जाकर लॉन में रखी हुई दिल की चेयर पर बैठ गया, जिस पर वो अपनी माँ की डेथ के बाद अकेली आकर बैठा करती थी। अब गुस्सा थूक दो ना, देखो घर तक तो चली आई मैं खुद मिलने तुमसे। चेयर घसीट कर बैठते हुए उसने अमान को कहा, जिसके चेहरे पर अभी तक हनूज संजीदगी रकम थी। मेरा नहीं ख्याल कि मुझ पर एहसान किया है तुमने। एक चुपती निगाह मीना पर डालते अमान ने उसे मजीद शर्मिंदा किया। मैंने ऐसा कब कहा?
वो अमान की बेरुखी देखते मिनमिनाई। अच्छा तो काम की बात करें जिसके लिए मैंने तुम्हें मिलने का कहा था। बातों को तूल पकड़ते देखकर अमान सीधा पॉइंट पर आया। हाँ ना बोलो, मैं सुन रही हूँ। टेबल पर अपना सेल रखते वो अमान की जानिब मुतवज्जो होकर पूछने लगी, तुमने मुझे शादी की ऑफ़र की थी, एम आई राइट? एक आईब्राउ उठाते हुए उसने मीना की जानिब देखते हुए बात शुरू की तो मीना ने गर्दन को हाँ में जुम्बिश दी। तो मैंने इस बारे में बहुत सोचा, आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुमसे शादी मैं सिर्फ एक शर्त पर करूंगा। उसके चेहरे पर फैलते खुशी के रंगों को देखते अमान ने अपनी बात जारी रखी। कौन सी शर्त पर? लेकिन अमान की अगली बात ने उसके चेहरे से खुशी के सारे रंग छीन कर परेशानी और उलझन में डाल दिया उसे। शर्त यह है कि सबसे पहले तुम अपने बाप की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाओगी और उन्हें ये बात भी बताओगी कि मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए कह रहा हूँ। इसके बाद मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर ले आऊँगा और अपने बाप से तुम्हारा हर रिश्ता फिर ख़त्म हो जाएगा। आराम से सीधे होकर बैठते हुए अमान ने अपनी शर्त उसके सामने रखी तो मीना परेशान हो गई, क्योंकि जितने आराम से अमान ये बात कर रहा था कि काम मीना के लिए वो काम अज़हद मुश्किल था। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये सब भी होगा। पर अमान, ये कैसे मुमकिन है? और वैसे भी तुम मेरे साथ शादी करोगे तो उस प्रॉपर्टी का क्या फ़ायदा? तुम्हारे पास तो किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उलझन भरे तासुरात लिए वो अमान से पूछने लगी, जिसके चेहरे पर अब सख्ती दोहराई थी। मुझे नहीं ज़रूरत तुम्हारी प्रॉपर्टी की, मैंने सिर्फ एक शर्त रखी है। ये तुम पर डिपेंड करता है, एक्सेप्ट करो या ना करो। अगर तो एक्सेप्ट कर लेती हो तो मैं शादी कर लूँगा तुमसे, और अगर नहीं करती तो जा सकती हो तुम। वैसे भी मुझे काम करना है, तुम आराम से सोच समझ कर जवाब देना। ट्रॉली पकड़े जूनी को आते देखकर उसने बात ख़त्म की और उठकर अंदर की जानिब चला गया। मामा पापा कहाँ हैं? मुझे उनसे काम है ज़रूरी। अमान के घर से वापसी पर वो पूरा रास्ता यही सोचते आई थी कि क्या करे। ऐसे सिर्फ प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी होती तो वो करवा लेती, कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन अमान का बताकर वो प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे करवाएगी? इसी कश्मकश ने उसने आते ही रज़िया से शम्स के बारे में पूछा। आराम कर रहे हैं तुम्हारे पापा, क्या काम है उनसे तुम्हें? आजकल तुम घर पर एक सेकंड नहीं रुकती, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं तुम्हारी? सब्जी काटते हुए उसने पलटकर मीना को जवाब देते हुए साथ में सवालों की भी बौछार शुरू कर दी थी, जिसे सुनकर मीना के तासुरात बिगड़ने लगे। मामा, एक तो आपकी फजूल सी बातों से मैं बहुत तंग हूँ। अब क्या आपको रिपोर्ट दिया करूँ पूरे दिन की? ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी होती हूँ, इसके बाद दोस्तों के साथ होती हूँ, कभी शॉपिंग पर और कभी होटलिंग। आप पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं मेरे बारे में। मुंह के जाविये बिगाड़ते उसने रज़िया को गिन गिन कर अपनी एक्टिविटीज़ बताईं और फ्रिज से पानी निकाल कर बोतल होंठों से लगा ली। अब ये शॉपिंग और दोस्तों वाले चोंचले बंद कर दो। शम्स के बिजनेस में दिन ब दिन नुकसान होता जा रहा है और तुम हो के ऐसे पैसे उड़ाने पर तुली हो। कभी ख्याल नहीं आता कि घर पर रहकर माँ बाप का भी ख्याल कर लिया करूँ, उन्हें भी वक्त दे दिया करूँ। कटिंग बोर्ड साइड पर रखते हुए उसने मीना को घूरियों से नवाज कर कहा, जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से वापस निकाल रही थी सारी बातें। मैं पापा के पास जा रही हूँ, आप अपना ये लेक्चर कभी बाद के लिए संभाल कर रखें। जब पापा को मेरी एक्टिविटीज़ से कोई इशू नहीं है तो आपको पता नहीं क्यों इतना मसला है। आपकी इन्हीं बातों की वजह से मैं आपके पास नहीं बैठती। वो तनफ्फुर भरी नज़रें रज़िया पर गाड़ती हुई बाहर निकल गई। पीछे वो अरे अरे ही करती रह गई। रज़िया उसे रोकना चाहती थी कि वो शम्स के कमरे में ना जाए और उन्हें थोड़ी देर आराम करने दे, लेकिन वो सुनती तो रुकती ना। पापा क्या कर रहे हैं? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? कमरे में आते ही उसने शम्स को देखकर पूछा, जो बैकग्राउंड से टेक लगाए किसी सोच में महव था। मीना की आवाज़ सुनकर चौंकते हुए उसकी जानिब देखने लगा। नहीं बेटा, मैं भला क्यों अपनी प्यारी सी बेटी से डिस्टर्ब होने लगा? इधर आओ मेरे पास। उसने शहद घुले नर्म और मीठे लहजे में अपनी बेटी को अपने पास बुलाया तो वो अपने शोल्डर कट बालों को झटकती हुई उसके पास आकर बैठ गई। पापा, वो मामा कुछ कह रही थी कि आपको बिजनेस में नुकसान हो रहा है। क्या हुआ? आप परेशान भी लग रहे हैं। तमहीद बांधते हुए वो बात आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट की जानिब आने लगी लेकर। कुछ खास मसला नहीं हुआ, तुम्हारी माँ को तो वैसे ही आदत है ऐसे बोलने की। कुछ नहीं हुआ, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? थकावट भरे लहजे में उसने नज़रें झुकाते हुए कहा, जिसका साफ मतलब था कि वो झूठ बोल रहा है। उसे वाकई में बिजनेस में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पापा, आपसे एक बात करनी थी।
आप मेरी बात मानेंगे ना? आगे होकर शम्स के कंधे पर सर रखते वो लाड भरे लहजे में बोली, तो शम्स ने उसके सर पर होंठ रख दिए। हाँ ना, क्यों नहीं मानूंगा? बोलो क्या बात करनी है मेरी गुड़िया ने? कुछ चाहिए तो बेधड़क मांगो, मैं हूं ना अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। अपनी सोच के मुताबिक उसे यही लगा था कि मीना कोई फरमाइश लेकर उसके पास आई है, क्योंकि जब भी वो ऐसे मीठे लहजे में शम्स से बात करने आती, आखिर में अपनी कोई ना कोई बात ही मनवा कर जाती थी। पापा आप बिजनेस, घर, सब कुछ मेरे नाम कर दें। वैसे भी तो ये सब कुछ मेरा ही है ना, ताकि अब मैं बिजनेस संभालूं और आपको रेस्ट दूं। मक्खन लगाते उसने अमान का नाम लेने से खुद को रोका। अगर वो अमान का नाम ले लेती तो कभी भी शम्स प्रॉपर्टी उसके नाम ना करता। इसलिए मीना ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। नहीं, अभी तुम पढ़ो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, मैं हूं ना, ऑफिस, बिजनेस सब कुछ मैं देख लूँगा। और माँ की बातों की टेंशन ना लिया करो, वो तो ऐसे ही बोलती रहती है। उसकी उम्मीद के बरक्स शम्स ने साफ अल्फाज में मना कर दिया तो मीना वापस उससे दूर हुई, जबकि शम्स सोचने लगा कि शायद वो रज़िया की बातें सुनकर उसके ख्याल के तहत ऐसा कह रही है। पापा जितना पढ़ लिया काफ़ी है, मैंने नहीं पढ़ना। और आप आज या कल ही प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हैं, मैंने कह दिया है ना, वरना मेरे साथ बिल्कुल भी बात मत कीजिएगा, और ना ही मैं रूम से निकलूँगी और ना खाना खाऊंगी। मैं कोई खुद की अयाशी के लिए नहीं ऐसे कह रही, आपकी ज़िंदगी और आराम के बारे में सोच कर ही ये बातें कर रही हूँ। शम्स को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए उसने दूसरा हर्बा आजमाया और उसके चेहरे को जांचती नज़रों से देखने लगी। मेरी बच्ची, मेरे बारे में कितना सोच रही हो तुम? मुझे कितनी खुशी हुई है, तुम्हें पता ही नहीं। मैं कल ही वकील से बात करके सब कुछ अपनी बच्ची के नाम कर देता हूँ। ये सब हमेशा से तुम्हारा ही तो है, मैं भला अपनी शहजादी बेटी को कैसे नाराज़ कर सकता हूँ? उसके कटे हुए शॉर्ट बालों पर हाथ फेरते शम्स ने उसके हक में जवाब दिया तो मीना के लबों पर गहरी हुई मुस्कुराहट। नहीं ना, और मैं अपने पापा से नाराज़ नहीं हो सकती। आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। आई लव यू सो मच पापा। इतनी जल्दी शम्स के मान जाने पर उसे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई। आखिर बेटी भी शम्स की ही थी। उसने भी शम्स के साथ दोहरी गेम खेली थी, जैसे वो करता आया था आज तक, और आज उसकी अपनी ही बेटी उसके साथ वही काम कर रही थी। अमान कहाँ है और भाभी अब कैसी हैं? दिल को होश में आए 2 दिन हो चुके थे। अब फिजियोथेरेपिस्ट भी रोज़ाना ही आती थी और दिल को काफ़ी वर्जिशें करवाने की कोशिश करवाती थी। जिस वक्त वो ना होती तो अमान बैठकर उसके हाथों और बाजुओं की मालिश शुरू कर देता, लेकिन वो अपने दिमाग में शक को पाल कर बैठी हुई थी, जो उसके खुश होने में रुकावट बन रहा था। बट उसकी तबीयत में काफ़ी बेहतरी आ चुकी थी। अभी मुराद ऑफिस से सीधा अमान के घर ही गया तो उसे जुनैरा और इश्मल बाहर लॉन में ही मिल गए, जो कुछ खेलने में मसरूफ थे। उसने मुस्कुराते हुए एक नज़र उन दोनों को देखा तो उसे अमान की बात याद आई, जब वो उसे कह रहा था कि एक बार दिल ठीक हो जाए तो वो जुनैरा को उसके घर भेजेगा। दिल तो तुम्हारी उम्र की आधी ही होगी, उसे भाभी कहते हुए अच्छे नहीं लग रहे। इश्मल को पानी देकर जुनैरा ने उसे चेयर पर बिठाया और मुराद को देखते हुए तंजिया लहजे में बोली तो हैरत से उसे देखने लगा। दिल अजीब ही लड़की थी और उसकी बातों का उल्टा जवाब दिए जा रही थी, हालांकि उसने तो आम सा सवाल किया था। वो तो मैं एहतरामन उसे भाभी कहता हूँ, और तो और वो एहतराम के काबिल भी है। इतनी अच्छी जो है, दूसरों की इज्जत करती है और उसमें मैनर्स भी हैं और अच्छी आदतें भी। कोई घर आए तो उसे खड़े खड़े उम्र के ताने नहीं देती, इसीलिए मैं उससे मोहब्बत से एहतरामन भाभी कहता हूँ। वाजे करके उसने दिल की खूबियाँ गिनते हुए जुनैरा से अपना बदला पूरा किया, जो पता नहीं क्यों उससे उलझ रही थी, जबकि हकीकत में वो दिल के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं जानता था कि वो कैसी है या कैसी तबीयत की मालिक है। बेचारी की नज़र कमज़ोर हो गई होगी, इसे समझ ही नहीं आई कि जिसे वो इज्जत दे रही है और जिसका वो एहतराम कर रही है वो इस काबिल ही नहीं। आराम से चेयर पर बैठते वो भी दिल का सहारा लेकर मुराद से लड़ाई करने पर उतर आई, जो दिल को देखने आया था। अपने आने का मकसद भूलकर वो उससे लड़ाई शुरू कर चुका था। अस्सलामुअलैकुम, फिर आ गए हो तुम आज, कैसे हो? अमान ने शायद उसे अपने रूम से ही उसे नीचे लॉन में देख लिया था, इसीलिए दिल को आराम से लेटाते बाहर आ गया, जो काफ़ी देर से बैकग्राउंड से टेक लगाए खामोश बैठी थी। फिजियोथेरेपी और अमान की कोशिशों की वजह से वो अब खुद खाना खा लेती थी, अपने हाथों को काफ़ी हरकत दे रही थी, लेकिन फिर भी जल्दी थक जाती थी। क्या मतलब आज फिर 2 दिन के बाद आया हूँ भाई, फिर भी नहीं जीने दे रहे। मैं वैसे भी तुम्हारे लिए नहीं आया जो तुम्हें इतना खटक रहा है, मैं दिल के लिए आया हूँ, उसकी खैरियत दरियाफ्त करने।
امان کی بات سن کر زنیرہ کے ہونٹوں پر پھیلتی طنزیہ مسکراہٹ نے اسے سلگا کر ہی تو رکھ دیا۔ امان کے آتے ہی وہ چیئر سے اٹھ اور اپنی کرسی اسے بیٹھنے کے لیے پیش کی، جو اس نے بخوشی قبول کر لی۔ اس نے بھی میزبانی نبھانے کی ذرا برابر ضرورت نہیں سمجھی۔ مراد کو تو مانو آگ ہی لگ گئی۔ اس وقت سے وہ کھڑا تھا تو میڈم اسے تانے دیے جا رہی تھی، بیٹھنے تک کا نہیں کہا، اور ابھی امان کے لیے جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ زنیرہ اس کے سرخ پھولے چہرے کو دیکھ کر اپنی ہنسی دبائی تو امان کا قہقہہ بلند ہوا۔ اس کے ساتھ ہی زنیرہ بھی زور زور سے ہنسنے لگی۔ شاید وہ دونوں سمجھ گئے تھے کہ مراد غصہ ہو رہا ہے، اسی لیے اس کے لال بھبوکا چہرے کو دیکھ کر دونوں دانت نکال رہے تھے۔ تھوڑی دیر انہیں گھورنے کے بعد مراد بھی ان کا ساتھ دینے لگا اور کھینچ کر امان کو اٹھاتے ہوئے اس کی چیئر پر بیٹھ گیا، لیکن سیکنڈ فلور پر گلاس وال سے جھانکتی کالی گہری آنکھوں میں آنسو امٹنے لگے۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو رگڑ کر صاف کیا۔ کاش میں پہلے کی طرح ہوتی تو ایسے امان کسی اور کی طرف متوجہ ہی نہ ہوتے۔ میرے پاس بیٹھے تھے تو کتنے اداس لگ رہے تھے، اور جیسے ہی زنیرہ کے پاس گئے اتنا ہنسنے لگے۔ اللہ پاک امان کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ ایک بار میرے پاؤں ٹھیک ہو جائیں تو میں خود ہی ان دونوں کے درمیان سے نکل جاؤں گی۔ میرے دل کا کیا ہے، تھوڑی سی تکلیف اور سہ لے گا، مجھے تو ویسے بھی عادت ہے سب کچھ برداشت کرنے کی، ایک بار اور صحیح۔ امان کے روم سے جاتے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ویل چیئر پاس کی اور مشکلوں کے ساتھ خود کو گھسیٹتی اس پر بیٹھی اور گلاس وال کے پاس آ کر رک گئی، جہاں سے لان کا سارا منظر واضح نظر آ رہا تھا، لیکن یہ منظر اس کے دل کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔